Once again, a very good morning in Jai Hind class 12th. Continuing with the chapter number 6, staffing. Yesterday we were discussing the topic, that is steps in the selection procedure. Selection, it involves a series of steps, right? By which candidates are screened. और वो series क्या है बेटा? The very first one was, which this we have already discussed yesterday, receiving applications and preliminary screening. Application receive की जाती हैं from the people who are looking for the job, ओके और उन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होती है. स्क्रीनिंग में एवरीथिंग इज मेंशन्ड, their qualification, their capability, their training, their skills, or their experience, right? After that, selection test will be conducted. What was there in the selection test? Individual differ with respect to physical characteristics, capacity, level of mental ability, their likes and dislikes. काम करते हुए मशीनरी पर बता दिया जाता है कि आप इसमें व्यूज़ दो, अगर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो आपके क्या व्यूज़ होंगे. उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव. So there are few kind of tests to be arranged for those candidates. The difference among the individual candidates can be analyzed with the help of psychological and trait test. Psychological, these are based on the assumption that human behavior at work can be predicted. कई बार हम काम की ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पॉजिटिवली हम हैंडल कर सकते हैं, बट वी गो नेगेटिव, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, राइट? कई बार ऐसा हो जाता है. सो दीज टेस्ट इंक्लूड इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ट्रेड इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट. Okay, they bring out the qualities and weakness of the individual, and this is the work of an people who is going to recruit you. वो आपकी qualities और weakness को बाहर निकाले, which could be analyzed before offering you the job. Next point is बेटा employment interview. हमने यहाँ पर applications receive किया, screening किया, the most suitable candidates को selection test के लिए apply कराया. Then comes interview. After the test, interview will be conducted. Although application and employee test provide a lot of valuable information about the candidate, but they do not provide complete information. What is that? See, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है टू गेन मोर, टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन. जो मेन पर्पस होता है इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का, वो होता है बेटा एक तो टू फाइंड आउट दी सुटेबिलिटी, to find out the suitability, right? Second is to seek more information, okay. Next is more information किसके बारे में? about the candidate. To give candidate an accurate picture of the job with detail. Picture of job with detail. Right? So these are the three purposes to conduct the employment interview. Once you are done with the applications, you screen the application, you go through the screening committee बैठती है जिसके लिए, जिनसे applicants may be asked to attend preliminary interview to provide additional information. Selection test में हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, whether the candidate is positive और negative. जज करते हैं, उसको देखते हैं कि काम करते हुए इसका behavior कैसा हो सकता है. After that he had to go through the employment interview, जिसमें their purpose is to find out the suitability, right? Whether the candidate is suitable for the particular job or not. To seek जो रह जाता है, like हमने उसका एक्सपीरियंस देखा, क्वालिफिकेशन देखा, बट इफ़ द एम्प्लॉयर वांट टू नो मच मोर अबाउट लाइक स्ट्रेंथ, लाइक वीकनेस, तो सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, तो वो हम इस स्टेप पर में करते हैं. टू प्रोवाइड देम द पिक्चर, होल पिक्चर ऑफ द जॉब, व्हाट दे सपोज टू डू, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम विद डिटेल, उन्हें समझा दिया जाता है, राइट? टर्म्स एंड कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़. See, the occasion, that is personal meeting
बिटवीन द पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यू लेते हैं इंटरव्यूअर्स कहलाते हैं, एंड द कैंडिडेट, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में इंटरव्यू हो रहा है, कैंडिडेट। पैनल होता है, पैनल बैठता है, कई लोग होते हैं उसमें। इंटरव्यूअर्स और कैंडिडेट के बीच में एवरीथिंग वॉज क्लियर, मस्ट बी क्लियर, राइट। दे मे ऑल्सो बी यूज फॉर टेस्टिंग द क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। वो हर तमाम कोशिश करेंगे उसकी क्वालिटीज़ को और उसकी कैपेबिलिटीज़ को समझने की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। बिकॉज फॉर द सिलेक्शन ऑफ राइट टाइप ऑफ पीपल, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज़ मोस्ट, ये दिस पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गेट टू नो द डिटेल इन्फॉर्मेशन, और कैंडिडेट को सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन देना अबाउट दी कंपनी। कम्युनिकेशन स्किल जज की जाती हैं इसमें कैंडिडेट की। सी रिटन टेस्ट हो गया तो उसमें राइटिंग स्किल्स का पता चला, बट कम्युनिकेशन में हाउ इज़ दी व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज़ ऑफ द कैंडिडेट, दिस इज़ ओनली वी गेट टू नो while interacting with the people. His way of thinking can also be known, his way of thinking, communication skill का पता चलता है, communication skill, his way of thinking, वो कैसा सोच रहा है। आप घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके आंसर्स वो देगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर द कैंडिडेट हैज़ नॉट टू गो थ्रू एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अगर कोई कैंडिडेट सेकंड प्रोसीजर दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से नहीं गुजरा है तो उसके लिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द एप्लीकेशन ब्लैंक कैन बी चेक ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जो कुछ रह जाता है स्पेस ब्लैंक, वो सभी चीज़ें इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर्स कैंडिडेट से पूछ लेते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या पता चला, वेदर द कैंडिडेट इज़ सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, टू सीक मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट जो भी रह जाता है, टू गिव द कैंडिडेट द डिटेल पिक्चर ऑफ द जॉब एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। पैनल बैठता है इंटरव्यूअर्स का, वो उसके और कैंडिडेट के बीच में हर चीज़ देखी जाती है। वो ये ऑब्जर्व करता है कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द कैंडिडेट, व्हाट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ दिस कैंडिडेट, राइट। So this is the third point, that is employment interview. We are done with the receiving applications and preliminary screening, selection test, employment interview. Next is reference checking. अच्छा सी, आप ये देख रहे हो इसमें एरो लग रहा है, यहाँ पर लिखा है रिजेक्शन if found unsuitable. तो मेडिकल एग्जामिनेशन तक if any candidate found unsuitable, so he become the part of rejection, not the part of selection. Appointment letter, only that candidate will get the appointment letter who will be selected, not rejected after all these series of steps. Okay, now come to the reference checking. What is in this reference and background checking? See, a reference is potentially an important source of information about a candidate ability and personality if he or she holds a responsible position in the organization. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी अच्छी पोजीशन पर किसी पर्सन को अपॉइंट करने जा रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट टू नो द रेफरेंस, टू गेट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। किसी रेफरेंस एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जिससे हमें पता लगता है वी गेट टू नो द कैंडिडेट्स एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी। ऐसा आपने सुना होगा कि किसी ने सिफारिश की है, ये उसके रेफरेंस से आया है, राइट। तो लेट्स सपोज रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स सपोज 10 लोग काम करते हैं, इन 10 में से 2 दे आर द मोस्ट केपेबल एम्प्लॉयज़, ठीक है, केपेबल एम्प्लॉयज़। अब एक वैकेंसी हो गई कंपनी में, इन 2 में से किसी एक ने अपनी रेफरेंस से किसी को बुलाया कि सर अगर आपको सूटेबल हो इस पोजीशन के लिए, वो ही और शी इज़ द बेस्ट सूटेड पर्सन, तो आप एक बार चेक कर लो। तो बिकॉज़ ये हमारे मोस्ट कैपेबल पर्सन है, तो इनके रेफरेंस से कोई आएगा तो वो अच्छा ही होगा, उस पर डाउट नहीं कर सकता ओनर, राइट। So prior to final selection, the prospective employer normally makes an investigation. फाइनल सिलेक्शन से पहले जो एम्प्लॉयर होता है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करता है ऑन द रेफरेंस अप्लाइड बाय द एप्लीकेंट। वो किसके रेफरेंस से आया है, कहाँ से आया है, ठीक है, कैंडिडेट। ही अंडरटेक अ थॉरो सर्च इनटू द कैंडिडेट्स फैमिली बैकग्राउंड,
उसका पास्ट एम्प्लॉयमेंट, उसकी एजुकेशन, पर्सनल रेपुटेशन और पुलिस रिकॉर्ड। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू गेट टू नो ऑल द रिलेटेड थिंग्स अबाउट द बैकग्राउंड चेकिंग यू कैन से, और द रेफरेंस यू कैन से, द कैंडिडेट। ठीक है, जिसमें आप किसी अच्छी पोजीशन के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर करने जा रहे हो, तो चाहे वो किसी के रेफरेंस से नहीं है, इवन देन यू नीड टू चेक द बैकग्राउंड। और वो बैकग्राउंड चेक करते हुए आपको पता लगता है कि उसकी पास्ट एम्प्लॉयमेंट, उसने कौन कौन सी कंपनीज़ में काम किया है, कहाँ इससे पहले काम किया है, वहाँ उसके साथ कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हुई, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी रेपुटेशन तो ख़राब नहीं है, उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जिसे आप अपने एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी नहीं, एक्चुअली अपनी फैमिली का पार्ट बनाने वाले हो। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर के लिए फैमिली हो गई ना, तो आप उससे पहले उसे उसका हर एक चीज़ चेक करोगे, बैकग्राउंड चेक करोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन डिसीजन। अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, सीरीज नंबर 2, इंटरव्यू, सीरीज नंबर 3 एंड रेफरेंस चेक इज प्रिपेयर्ड। अब एक कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जाती है हु गॉन थ्रू द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, और इन सबको क्लियर करके आगे निकल गए हैं। एंड देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट। अब उनके मेरिट के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है। लेट्स सपोज 4 कैंडिडेट्स, हमें 2 की रिक्वायरमेंट है और 4 कैंडिडेट्स बहुत सूटेबल हैं, ठीक है। तो अब ये देखा जाएगा इन चारों की एजुकेशन, इनका एक्सपीरियंस, इनकी एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, इनकी स्किल्स, ये किस में ट्रेंड है, उसकी अलग एक मेरिट बनेगी, अलग लिस्ट बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही सूटेबल हैं, चारों ही सूटेबल हैं, सॉरी। For preparing the final list of each department, the views of the concerned department head are also considered. अब let's suppose हमें 4 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है बट सेल्स डिपार्टमेंट में ही ज़रूरत है, ओके और हमारे पास अवेलेबल कैंडिडेट हैं 6, जो कि हमने बेस्ट सेलेक्ट किए हैं, चूज़ किए हैं आफ्टर सिलेक्शन टेस्ट, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, आफ्टर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। अब इन 6 में से हमें 4 की रिक्वायरमेंट है। इन 4 का, अब इन 6 के 6 का हमने एक अलग से लिस्ट बना ली जिसमें उनकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल नोट डाउन किया हमने। अब HR डिपार्टमेंट का नहीं, अब उस सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको बुलाया जाएगा और उसे ये मेरिट, ये लिस्ट दिखाई जाएगी कि भाई अब आप चेक करो, आपको ये जो 4 कैंडिडेट्स हैं, ये 6 हमने आपको फाइनल करके दिए हैं, इनमें से कौन बेस्ट सुटेबल है, तो वो आपका कंसर्न होगा, ठीक है। उस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट को वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो उस डिपार्टमेंट से कंसर्न करेंगे। अब वो उनमें से सेलेक्ट कर लेंगे, आउट ऑफ दो 6 वो उन चारों को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। फिर क्या होगा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। दिल गो थ्रू दी मेडिकल एग्जामिनेशन, दिस इज़ द प्री एम्प्लॉयमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल टेस्ट, यू कैन से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। आपके स्कूल में भी जब आप छोटे थे, एडमिशन लेने आए थे, तो आपके पेरेंट्स से एक मेडिकल फॉर्म भरवाया गया था जिसमें ये मेंशन स्पेसिफाई करा दिया था कि शायद आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई इंजरी, कोई इनकेपेबिलिटी, ठीक है। विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैज़ 3 ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट? फर्स्ट, इट सर्व टू असरटेन द एप्लीकेंट्स फिजिकल कैपेबिलिटीज़ टू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट। हो सकता है कल काम करते हुए कोई प्रॉब्लम हो जाए, अस्थमा अटैक हो जाए, तो वो हमारे लिए, कंपनी के ओनर के लिए, टू गेट टू नो अबाउट दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट सर्व्स टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द अनवारंटेड क्लेम अंडर वर्कर कॉम्पनसेशन लॉ और अगेंस्ट लॉ सूट फॉर डैमेजेस। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ट्रेड यूनियन बन जाती है, सब लोग मिलकर अपने हित के लिए लड़ते हैं, उस चीज़ से ऑर्गेनाइजेशन को अपना बचाव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर किसी को कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक से दूसरे को फैलती है, लाइक कोविड-19, फ्रॉम एंटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट द पर्टिकुलर कैंडिडेट हैज़ टू गो थ्रू द मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट। Then a qualified medical expert appointed or designated by the organization should certify whether the, अब इसे सर्टिफाई कौन करेगा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एक क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट रखते हैं। आपके स्कूल में भी है ना, जानकी मैम इज़ देयर, डेजिग्नेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कैंडिडेट को का पूरा चेकिंग करती है अच्छे से, दैट वेदर ही इज़ फिजिकली फिट फॉर द स्पेसिफिक जॉब और नॉट। Proper medical examination will ensure higher standard of health and physical fitness.
प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन से वी गेट टू नो दैट द पर्टिकुलर कैंडिडेट इज़ फिजिकली फिट एंड हेल्दी, सो दिस विल रिड्यूस द रेट ऑफ एक्सीडेंट। कल काम करते उसको अटैक पड़ जाए तो वो प्रॉब्लम होगी, ऐसे एम्प्लॉय को हमें नहीं रखना है। या वो प्रिकॉशन ले, जो भी है वो उसे बताना इंपॉर्टेंट है। लेबर टर्नओवर, किसी के जाने से काम अफेक्ट करेगा। एंड एब्सेंटिज्म, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सेंट रहेगा बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द डिजीज़। सो इस तरह का एम्प्लॉय को, पर्सन, कैंडिडेट को एक कंपनी अवॉइड करती है। मेडिकल एग्जामिनेशन इसीलिए होता है ताकि उनका काम सफ़र ना करे। अब यहाँ पर सारा स्टेप्स प्रोसेसिंग पूरे कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर द एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, सिलेक्शन process is done, then medical examination is done of those selected candidates. अब यहाँ पर the one who has selected, those 4 who are now selected, these 4, they will got the appointment letter at this point now, job offer. After a candidate has cleared all the hurdles in the selection process, now he's formally, उसको appointment letter दे दिया जाता है। The date by which the candidate must join the organization, उस लेटर पे वो डेट लिखी होती है कि उसको कब से ज्वाइन करना है। All term and condition, nature of job, उसकी salary, all important essential things has to be mentioned in the appointment letter. Once the candidate got the appointment letter, that means he is now become formally the employee of that particular organization. और जब तक employment letter नहीं मिलता है, यहाँ तक it is a series of rejection. यहाँ पर he get to know that he is selected, they are selected. Once a candidate got the appointment letter, जिस पे डेट मेंशन होती है, डेट मेंशन होती है कि कब से उसको ज्वाइन करना है कैंडिडेट को, उसकी सैलरी क्या होगी, उसका जॉब क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, each and everything, all term and conditions is to be mentioned in the appointment letter. Then comes the last point, that is 8.1, contract of employment. After getting the job offer, candidate has to give his acceptance. जो time period उसमें mention है, candidate को उस पर join करना है। After acceptance, candidate will have to submit his certificates of. Once the candidate joined the organization, he has to submit his all certificate of qualification and experience HR department में। इसके लिए सेपरेट HR डिपार्टमेंट, पर्सनल मीन्स HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मालिक और आप, विल ऑल्सो साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें सारे टर्म और कंडीशंस लिखे होते हैं। जॉब टाइटल होता है, ड्यूटीज़, प्लेस, वर्किंग आवर, लीव रूल्स, पे स्केल, अदर बेनिफिट्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, सारा मोड और टर्मिनेशन, आप कब छोड़ सकते हो, किस तरह से छोड़ सकते हो, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, लीव कैसे ले सकते हो, सैलरी कैसे मिलेगी, एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंशन इन दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. So this is all the series of steps which are to be done under selection process, right? Okay, I hope the series is clear to all of you, series of steps is clear to all of you. Then comes induction training. What is induction? Induction is concerned with introducing the new employee to the organization. यहाँ पर employee अब आपकी कंपनी में आ चुका है, अब he has got the appointment letter, all the things related to the employment is clear to the particular employee. Now the induction or training program has to be done. Induction means अब आप कभी न्यू एडमिशन लेते हो स्कूल में किसी में, लेट्स सपोज आपकी बात करें तो आपको द टीचर नीड्स टू टेक इनिशिएटिव टू गेट यू फेमिलराइज विद अदर स्टूडेंट्स. अगर ऐसा नहीं होगा तो आप खुद से नहीं किसी के पास शायद जा पाओ, आप खुद से इनिशिएटिव नहीं ले पाओ. इसी तरह सेम इज़ हैपनिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस. न्यू एम्प्लॉय को बाकी सारे रूल्स और रेगुलेशन समझाना, प्रोसीजर, अदर पीपल से इंटरेक्ट कराना, दिस इज़ इंडक्शन. When a new employee join the organization, he must be properly introduced to his superior. उसके superior कौन है और उसके fellow employees कौन है, उसे ये familiarize कराना बहुत important है. He must be given orientation training so that वो quickly settle down हो जाए. That is induction.
इंडक्शन मतलब किसी न्यू एम्प्लॉय को फेमिलराइज कराना रूल्स और रेगुलेशन से, उसके सुपीरियर से, उसके फेलो एम्प्लॉय से, right? Induction training is a type of training to help a new employee in setting down quickly into the job by becoming familiar with the people, surroundings, the job and the business. इंडक्शन से न्यू एम्प्लॉय को सेटल डाउन होने में हेल्प मिलती है, वो फैमिलराइज हो जाता है लोगों से, अपने सराउंडिंग से, अपनी जॉब से और उस काम से. इसकी ड्यूरेशन फ्यू आवर्स या फ्यू डेज हो सकती है, क्योंकि an employee could take few hours or few days, a day or 2 days to get familiarized with each and everything, right? So that's all for today. From tomorrow we'll discuss the another topic, that is placement, which is different from induction. That's all for today. Have a good learning. Thank you.